नमस्कार दोस्तों, आप सभी का परम क्लासेस चैनल के इस मंच पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आ गई है एक ब्रेकिंग न्यूज और ब्रेकिंग न्यूज है सी टेट से संबंधित। और वो ब्रेकिंग न्यूज है कि आपकी एग्जाम डेट जो है सी टेट की रिवाइज हो चुकी है और वह है 14 दिसंबर 14 दिसंबर हो चुकी है। दोस्तों, जो पहले थी वो रिवाइज होकर 14 दिसंबर हो चुकी है। सबसे पहले आ गया परम क्लासेस चैनल पर ये। तो दोस्तों, आपको जान लेते हैं आज वो सारी बातें जो कि सीटेट से संबंधित है। सीटेट का पूरा नाम क्या है, सीटेट से संबंधित महत्वपूर्ण तारीखें कौन सी है और सीटेट का सिलेबस क्या है, कैसे तैयारी करनी, कितने क्वेश्चन आएंगे और टिप्स क्या तैयारी के, और वो महत्वपूर्ण बातें जो 11 क्वेश्चन में समेट कर लाया परम क्लासेस चैनल, वो हम बात करेंगे वीडियो के अंत में। तब तक के लिए लगातार देखते रहिएगा परम क्लासेस चैनल का यह वीडियो। आपको सी टेट से संबंधित सारी जानकारी एक वीडियो में ही मिलेगी। दोस्तों, जान लेते हैं आज के वीडियो का मसाला क्या है मैटर। तो दोस्तों, आज का जो हम चैनल जानेंगे, वीडियो जानेंगे, उसमें सीटेट के बारे में जो जानकारी होगी वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी। तो चलिए आइए जानते हैं सबसे पहले इसे इंग्लिश में कि ये सीटेट आखिर भला क्या है और ये क्या चेंज हुआ है और क्या पैटर्न है और क्या फुल फॉर्म है। ये सारी बातें आज जान लेंगे हम एक साथ, और वो भी परम क्लासेस चैनल के मंच पर। तो दोस्तों, द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट is conducted to determine the eligibility of candidates for teacher posts for class 1 to 8 in central government schools such as NVS, KVS and other schools etc. The seated December exam date has been revised. Again I want to say that the exam date for December date has been revised. Now the exam will be held on 14th December 2024. Or the day will be Saturday, offline mode in 136 cities, and we will know these cities in this video today. If the candidates are more than in some cities, exam can also be held on 15th December 2024. The CTET paper second will be held in the morning shift from 9:30 to 9:30 a.m. to 12 noon, and paper first will be held in the evening shift from 2:30 p.m. to 5 p.m. That was the revised date and the time of exam. Now we will know the important dates related to CTET December 2024. Listen carefully the important dates. CTET Admit Card 2024 will be released at CTET website. That the date is 12th December 2024. CTET exam will be commenced at 14th December 2024, Saturday. CTET answer key will be released at third week of December 2024. And CTET result for December 2024 will be announced in January 2025 with warm welcome of Happy New Year. That was the main dates, revised dates and important informations in short. Now we will know all things in detail. The eligibility criteria for
CTET 2024. The eligibility criteria are different for selecting candidates for the post of teacher for class 1st to 5th and classes 6 to 8. Let's have a look at the educational qualification required by the candidate for both these sections. Education qualification for class 1st to 5th. A candidate who has completed their senior secondary or its equivalent exam with a minimum of 50% marks and cleared or appeared in the final year exam of diploma in elementary education, that will be 2 years diploma, or a candidate who has completed senior secondary or its equivalent exam securing a minimum of 45% marks and has cleared or appeared the final year exam of diploma in elementary education. The duration should be 2 years of diploma according to the AICTE norms and regulations. Next is candidate who has completed senior secondary or its equivalent test with a minimum of 50% marks and has cleared or appeared in the final year exam of Bachelor of Elementary Education. Candidate who has completed senior secondary or its equivalent test with a minimum of 50 marks and has cleared or appeared in the final year exam of diploma in education. A candidate who has a bachelor's degree and has cleared or appeared in the final year exam of diploma in elementary education. These are the qualifications for 1st to 5th class teachers for CTET exam. Next is education qualification for classes 6 to 8 teachers. A candidate who has a graduation degree and has passed or is appearing in the final year examination of diploma in elementary education, that will be 2 years duration. And next we will know the selection process of CTET exam 2024. Candidates appearing for the Central Teacher Eligibility Test CTET will be shortlisted on the basis of their score in the CTET exam. CTET is an eligibility test only, which means qualifying for CTET does not guarantee jobs to the aspirants. It is not guarantee for jobs. It is pre-exam. They have to apply for recruitment at different schools based on the available vacancies which require CTET certification, for which the candidates must score more or equal to 60% marks in order to get selected. Now we will know the exam pattern of CTET December 2024. The CTET exam will be conducted in 2 phases. First will be paper first, second will be paper second. Paper first is conducted for candidates who have been looking forward to becoming teachers for class 1st to 5th, and paper second is conducted for candidates who aspire to become teacher for class 6 to 8. Candidates also have the option to apply for both paper first and paper second. Questions asked in both paper first and paper second are objective multiple choice questions. A candidate is required to
score a minimum of 60% to qualify CTET exam. One major thing to note is that the CTET score is now valid for a lifetime as announced by CBSE. The CTET score which you have been achieved through the exam, the score will be lifetime valid, announced by CBSE. Now we will know the detailed exam pattern for paper first and second. For paper first and second, the subject language first compulsory. Number of questions will be 30 and total marks will be 30. Right? Language second compulsory. Number of questions same 30 and total marks will be 30. Third subject child development and pedagogy, that 30 questions and total marks 30. Environmental studies, question will be 30 and marks will be also 30. Mathematics, number of questions will be 30 and total marks will be 30. Total question 150 and total marks are 150 also. Nature and standard of questions will be the test items on child development and pedagogy will be focused on the educational psychology of teaching and learning relevant to the age group of 6 to 11 years. They will focus on understanding the characteristics and needs of diverse learners, interaction with learners, good, and the attributes and qualities of a good facilitator of learning. The test items in language first will focus on the proficiencies related to the medium of instruction. The test items in language second will focus on the elements of language communication and comprehension abilities. Language second will be a language other than language first. A candidate may choose any one language as language first and other as language second from the available language options and will be required to specify the same in the confirmation page. Opt for two languages in which you wish to appear for CTET. You can choose two languages. Now, the test items in mathematics and environmental studies will focus on the concept, problem solving abilities and pedagogical understanding and applications of the subjects. In all these subjects area, the test items will be evenly distributed over different divisions of the syllabus of that subject prescribed by CBSE for class 1st to 5th by the NCERT. The questions in the test for paper first will be based on the topic prescribed in the syllabus by the NCERT for class 1st to 5th, but their difficulty standard as well as linkages could be up to the secondary stage. Now we will know the CTET paper first and second exam pattern. CTET 2024 syllabus, the revised CTET syllabus has been released by CBSE when preparing to attempt for upcoming CTET for December 2024. The detailed syllabus is the first and foremost step for the candidate to begin with. The syllabus is lengthy and resolved around child development and pedagogy, which is one of the
most important parts of CTET. Other sections asked in CTET 2024 includes mathematics, science, environmental science, and languages. Besides these, the candidates has to prepare with any 2 languages. Syllabus for CTET paper first. This covers topics of child development and pedagogy, language first and second, mathematics and environmental science, and syllabus for CTET paper second. This covers topics of child development, pedagogy, language first and second, mathematics, science, social studies. The candidates has to choose any one from math, science or social studies as per their respective subjects. Friends, now the question is CTET 2024 certificate validity. The validity of the CTET certificate for an appointment has been revised, and now the certificate will remain valid throughout the life, not for the 1 or 2 years. You should not confuse. The Prakash said you should not confuse, because we are telling you at first time that the CTET certificate will be authorized, will be able for whole lifetime achievement. The revised validity has been made effective from 2011 as announced by the Education Minister, and the candidates whose certificates are expired can get their new certificate with no expiry date. It has been cleared and declared that the states and UTs will be responsible for revalidating or reissue TET certificates to the candidates whose period of 7 years has already expired from after 2011. Earlier, the validity of the CTET certificate was the 7 years from the date of issue, before the 2011. Now we will know what is the salary for CTET teacher. So candidates after qualifying CTET 2024 exam will be eligible to apply for teaching jobs for class 1 to 8 in central government schools such as KVs, NVS and other schools, etc. The basic salary of teacher CTET qualified teachers is between rupees 9,300 to rupees 34,808 per basic pay. The net in hand salary of a CTET qualified teacher ranges from 35,000 to rupees 50,000 per month. That is the main salary bracket. CTET 2024 key points. The key points are: in the releases, it is also notified that within the existing syllabus of CTET and structure of the question paper, the question papers will be developed to assess less of factual knowledge and more of conceptual understanding, application, problem solving, reasoning and critical thinking. And we should focus on following aspects to assess the teacher's understanding of teaching their respective subject, to assess the futuristic teacher's pedagogic content knowledge, to understand their knowledge for the relevance of the subject in the school curriculum. Some questions will be added for assessing the planning of teaching learning experiences. The questions paper will be focused on the assessment methodologies specific to the concept. Friends, these were the main things. Now we will know the CTET exam centers, which you want to know very eager. Common teacher eligibility test CTET will be conducted in the following cities, and the candidates have to mark
a choice for 3 exam centers at the time of registration from the list. The first preference will be given to the chosen exam center. In case of unavailability, the CBSE can allot any exam center. States and UT, Andaman and Nicobar Island, cities Port Blair, Andhra Pradesh, Anantapur, Bhimavaram, Chirala, Iluru, Guntur, Kadapa, Kakinada, Kurnool, Nandyala, Nasarapeta, Nellore, Pedatur, Radhamundri, Srikulam, Tirupati, Vijayawada, विशाखापट्टनम और विजयनगरम, आश्रम डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, जोरहाट, सिलचर, तेजपुर, बिहार, भागलपुर, भोजपुर, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, छत्तीसगढ़, भिलाई, नगर, बिलासपुर, रायपुर, चंडीगढ़ में ही है, दादरा एंड नगर हवेली सिटी, दमन एंड दीव, दमन इन दिल्ली, गोवा, पणजी, गुजरात, अहमदाबाद, आनंद, बरडोली, गांधीनगर, जामनगर, महसाना, राजकोट, सूरत, वडोदरा, वलसाड, वापी। अदर देन हरियाणा, अंबाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, करनाल, हिसार, कुरुक्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, बिलासपुर, हमीरपुर, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और ऊना, जम्मू, सांबा, श्रीनगर, झारखंड, बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर एंड रांची, कर्नाटका, बेलगावी, बेंगलुरु, हुबली, कलबुर्गी, मंगलुरु, मैसूरू, शिवमोगा, उडुपी, केरला, अलापुझा, एर्नाकुलम, इडुक्की, कन्नूर, कसरागोड, कोल्लम, कोट्टायम, कोझिकोड, मल्लपुरम, पलक्कड़, तिरुवनंतपुरम एंड त्रिशूर, लक्षद्वीप, कवराटी, मध्य प्रदेश, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सागर, सतना एंड उज्जैन, महाराष्ट्र, अहमदनगर, अमरावती, औरंगाबाद, बारामती, चंद्रपुर, धुले, जलगांव, कास्ती, कोल्हापुर, कोपरागांव, लातूर, मुंबई, नागपुर, नांदेड, नाशिक, पंढरपूर, पुणे, रत्नागिरी, संगमनेर, संगोली, सतारा, सिंदूरपुर एंड सोलापुर, मणिपुर, इम्फाल, मेघालय, शिलोंग, मिजोरम, आइजवाल, नागालैंड, दीमापुर, कोहिमा, ओडिशा, बालासोर, ब्रह्मपुर, गंजम, भुवनेश्वर, कटक, ढेंकनाल, रोरकेला, संबलपुर, पुडुचेरी, सेम सिटी, पंजाब, अमृतसर, बठिंडा, फतेहगढ़ साहिब, जालंधर, लुधियाना, पठानकोट, पटियाला, संगरूर, राजस्थान, अजमेर, अलवर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा एंड उदयपुर एंड सिक्किम, गैंगटॉक, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, कुडालोर, डिंडीगुल, इरोड, कांचीपुरम, करूर, मदुराई, कन्याकुमारी, नमक्कल, सल्लेम, तंजावर, तुतुकुड़ी, तिरुचिरापल्ली, त्रिचूर, त्रिपुर, वेल्लोर, विल्लुपुरम, विरुधनगर, त्रिपुरा, अगरतला, आगरा, त्रिपुरा, सेम सिटी, अगरतला, उत्तर प्रदेश, आगरा, अलीगढ़, बरेली, बास्ती, बिजनौर, बिलासपुर, फरीदाबाद, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मथुरा, मुरादाबाद, मुजफ्फरपुर, नोएडा, प्रयागराज, सीतापुर एंड वाराणसी, उत्तराखंड, अल्मोड़ा, देहरादून, हल्द्वानी, पौड़ी, गढ़वाल, रुड़की, रुद्रपुर, वेस्ट बंगाल, आसनसोल, बर्धमान, दुर्गापुर, हावड़ा, कल्याणी, कोलकाता, सिलीगुड़ी and Surrey. These are the cities where
the CTET exam December 2024 will be held. Now we will know all things in Hindi also. The CTET एग्जाम अब हम हिंदी में भी जानेंगे क्या है ये सीटेट एग्जाम क्या है और इसकी एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है और क्या प्रमुख सवाल पूछे जाते हैं वो भी हम आज जानेंगे। दोस्तों हर कोई सीटेट की तैयारी करने में लगा हुआ है, लेकिन उन्हें यह पता नहीं है कि सीटेट की एग्जाम कब होने वाली है। तो दोस्तों पुनः एक बार ब्रेकिंग न्यूज बता देता हूं कि 14 दिसंबर को शनिवार को आपका एग्जाम होने वाला है, जो कि रिवाइज डेट हो चुकी है। ब्रेकिंग न्यूज है दोस्तों। इसके बाद आपको सारी बात, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा विद्यार्थियों के लिए जीवन की एक नींव रखती है और उनके लिए एक बेस तैयार करती है, ऐसा कि जो उसे भविष्य का भाग्य निर्माता, भारत का भाग्य विधाता बनाएगी। पर विद्यार्थियों का भविष्य निर्भर करता है, यदि उनकी प्रारंभिक शिक्षा अच्छी गुणवत्तापूर्ण हो तो वह आगे चलकर अपना अच्छा भविष्य तो बनाएंगे ही और देश का भविष्य भी उज्जवल बनाएंगे दोस्तों। और वह शिक्षक ही है, प्राइमरी शिक्षक वह नींव है जो कि उसका एक महल तैयार करता है शिक्षा का, जो कि हमेशा उसे रोशनी ही नजर आए, जहां पर खड़ा होकर जो स्टूडेंट है उसे अपनी मंजिल साफ दिखाई दे, वह है प्राइमरी टीचर। दोस्तों अब हमें जानने की जरूरत यह है कि सीटेट परीक्षा है क्या और सीटेट परीक्षा पास करने से होगा क्या। दोस्तों मैं बता देता हूं सीटेट परीक्षा क्या है। इसे जानने के लिए हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, क्योंकि परम क्लासेस चैनल आपके लिए खड़ा है सारी चीजें लेकर। तो आपको जानना है, खाली सुनना है कि क्या चीज है। ये सारा जानने के लिए आपको देखना है खाली परम क्लासेस चैनल के इस मंच को, जो आपको बताएगा हर चीज कि सीटेट क्या है, इसका जवाब क्या है सीटेट का, क्यों ये सीटेट परीक्षा हुई। तो दोस्तों सीटेट परीक्षा क्या है पहले तो ये जाने। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सीटेट अथवा एस्टेट को सरकार ने अनिवार्य कर दिया है। सीटेट अथवा एस्टेट परीक्षा उन विद्यार्थियों के लिए है जो शिक्षक बनने का सपना संजोए हुए है। इस परीक्षा के पास किए बिना आपके शिक्षक बनने का सपना पूरा नहीं हो सकता। ये चीज सुन ले और जान ले और दिमाग में बिठा ले। सीटेट परीक्षा का फुल फॉर्म है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, केंद्रीय शिक्षक योग्यता परीक्षा। ठीक है, यह परीक्षा सीबीएसई बोर्ड द्वारा, किसके द्वारा, कौन सा बोर्ड है दोस्तों, इस सवाल भी पूछा जा सकता है कि सीटेट एग्जाम किसके द्वारा आयोजित करवाया जाता है। तो कोई एनटीए नहीं है, कोई दूसरी एजेंसी नहीं है, यह होगा तो खाली सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित करवाया जाता है। पूरे देश में हर राज्य में आयोजित की जाती है और इस परीक्षा के द्वारा आप हमारे देश के किसी भी प्राइवेट तथा सीबीएसई बोर्ड के स्कूलों में पढ़ा सकते हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि भारत में अनेक ऐसे संस्थान हैं जो बिना कक्षा में उपस्थिति के भी डिग्री बांट रहे हैं, या यूं कहें कि बांट रहे हैं, बेच रहे हैं डिग्री। ऐसे में जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो परेशान हो रहे थे। इस व्यवस्था से वह विद्यार्थी परेशान हो गए जो नियमित डीएलडी, बीटीसी, बीएड आदि अन्य शैक्षणिक योग्यताओं को पूरा करने में मेहनत कर रहे थे और इसी के चलते शिक्षक भी गुणवत्ता पर भी प्रश्न उठ रहे थे। इस व्यवस्था पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने वर्ष 2010 से सीटेट लागू किया। अब बात आती है कि सीटेट 2023 की तैयारी के लिए हम क्या टिप्स अपनाएं, 24 और 25 के लिए क्या तैयारी करें, कैसे तैयारी करें। सबसे पहले जो हम टिप्स है वो आज जानेंगे। और दोस्तों आज के जो टिप्स है ना महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि दोस्तों ये टिप्स जो सीटेट एग्जाम है उनकी जो टॉप मेंटोर है उनके अनुभवों से निकल कर आए, उन्होंने तैयार की है। तो आपको बहुत आपके लिए उज्जवल और आपका भाग्य है कि आज आप जान रहे हो, उज्जवल आपका आज का दिन है कि आप परम क्लासेस के माध्यम से टिप्स जान रहे हैं जो कि आपको सीटेट में कोई भी नहीं रोक पाएगा, क्लियर हो। आप जान लेते हैं सबसे पहले सीटेट के सिलेबस को
ध्यान से पढ़ें, बारीकी के साथ पढ़ें, ताकि आपको यह पता चल सके कि आपको पढ़ना क्या क्या है। उसके बाद बेस्ट बुक से पढ़ना शुरू करें और बेस्ट चैनल देखें, परम क्लासेस चैनल को देखें। हर बात, हर चीज आपको सीटेट की मिले। अपनी पढ़ाई करने को अलग अलग सेक्शन में बांट दें, सब्जेक्ट को अलग अलग सेक्शन में बांटे, जिससे आपको पढ़ने और याद करने में आसानी रहेगी। टेट 2024 की स्मार्ट तैयारी के लिए एक अच्छा टाइम टेबल, जिसे कहते हैं कि अध्ययन कार्यक्रम बनाएं और उसका कड़ाई से पालन करें, उसे फॉलो करें, ना कि हम बनाकर भूल गए। आप जब तैयारी करें तो उसे बेहतर करने के लिए परम क्लासेस से ऑनलाइन क्लासेस की मदद भी ले सकते हैं। सीटेट एग्जाम के लिए पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों को हल करना अति महत्वपूर्ण है। अब आप कहेंगे क्यों, क्या उसमें सवाल आएंगे? दोस्तों, सवाल आए या नहीं है, लेकिन हमें हमारा स्तर का पता लग जाएगा, हमारी एक्सरसाइज हो जाएगी, हमारा रिवीजन हो जाएगा और हमें यह पता लग जाएगा कि हमारी वीकनेस क्या है और हमारी स्ट्रेंथ क्या है। दोस्तों, पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों के साथ जो स्टूडेंट्स हैं उनको अधिक से अधिक मॉक टेस्ट देना चाहिए। क्वेश्चन पेपर तो हम हल कर ही रहे हैं, लेकिन मॉक टेस्ट जो ऑनलाइन उपलब्ध है और आपको परम क्लासेस चैनल के इस जो है मंच पर भी उपलब्ध होंगे, उनको आपको क्लियर करते रहना है, उनको एग्जाम देते रहना है उनका, जिससे आपका परीक्षण हो जाए कि हम कहाँ पे कितने पानी में हैं। अब हम मॉक टेस्ट के आधार पर विश्लेषण करके उसके अनुसार तैयारी में अपेक्षित बदलाव कर सकते हैं। अब है परीक्षा पैटर्न। सभी विद्यार्थियों के मन में परीक्षा फॉर्म भरने के बाद यह प्रश्न बार बार आता है कि परीक्षा की तैयारी कैसे करें, कहाँ जाए, कैसे तैयारी करें, क्या करें ताकि वह इस परीक्षा को सफलतापूर्वक पास कर सके, न कि पूरे 60% लाए। आपके दोस्त जब आपको तरह तरह की कोचिंग के बारे में बताते हैं तो आप दिग्भ्रमित जरूर होते हैं, लेकिन दोस्तों आज का जो हमारा ये वीडियो है सीटेट प्रिपरेशन इन हिंदी में संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करेंगे, जिससे आपके समय की बचत होगी और आप घर पर बैठकर, परम क्लासेस क्या कहता है कि कोचिंग में जाने के लिए कोई जरूरत नहीं है, आप घर पर बैठकर ही तैयारी कर सकते हैं सीटेट। और वो भी आज हिंदी में भी जानेंगे, आप इंग्लिश में तो जाना ही, लेकिन आज हिंदी में जानेंगे कि हम तैयारी कैसे करें। तो दोस्तों, जो लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सीटेट प्रवेश परीक्षा के महीने से 100 दिन पहले उनका टाइम टेबल होना चाहिए। कैसे? फर्स्ट और सेकंड पेपर का दोनों का कम से कम 2-2 घंटे रेगुलर देना चाहिए, राइट। उसके बाद सीटेट परीक्षा के लिए तैयारी कैसे करें, इसके लिए जो हम आपको बिंदु बता रहे हैं, जो बिंदुवार बता रहे हैं आपको टिप्स, उनको आप फॉलो करें और आपको निश्चित रूप से अच्छे स्कोरिंग के साथ सफलता मिलेगी। घर पर ही रहकर 30 मिनट देकर इस परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं शुरुआत। इसके लिए आपको सीटेट की पूर्व परीक्षा में आए हुए प्रश्नों के प्रारूप को देखना होगा, पैटर्न देखना होगा, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद पहले परीक्षाओं में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, आप उन सभी प्रश्नों का अध्ययन करें। इसके लिए आपको सीबीएसई की वेबसाइट पर जाना होगा। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्न आपके बीएड, बीटीसी, डीएलडी लेवल के होते हैं। बाकी सभी प्रश्न सीबीएसई जो सिलेबस है उसकी क्लास 1 से लेकर 5 तक के होते हैं। इसके अलावा आप जिस विषय में भी आपको परीक्षा देनी है उस विषय से संबंधित एनसीईआरटी की कक्षा 6 से 8 तक की बुक्स ले लें। इनमें से आप मुख्य बिंदुओं, घटनाओं, प्रश्नों आदि को नोट्स के रूप में लिख लें, नोट्स बना लें अपने। और अब आती है बात की योग्यता क्या है, कितने परसेंट लाने चाहिए। तो मिनिमम 60% होना जरूरी है आपके पास, ताकि आप पास कर सके। और जो क्वालिफिकेशन है 50% इन 12th फॉर 1st to 5th एंड 2 years का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास एलिमेंट्री एजुकेशन का। और जब आप 6 to 8 जा रहे हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री और 2 year का डिप्लोमा होना चाहिए। ग्रेजुएशन डिग्री में 50 to 60% आपके पास मिनिमम होना चाहिए। तो ये है आपकी ग्रेजुएशन और ये इनका जो है। और प्रिपरेशन करने की जब बात आती है तो
दोस्तों हम क्यों करें प्रिपरेशन, क्यों जाएं? तो दोस्तों जो सेंट्रल लेवल के स्कूल्स हैं जैसे केवीज है, एनवीएस है, वहां पे जाने के लिए हमें इनकी तैयारी करनी पड़ेगी। दोस्तों इन सबको जानने के लिए हमें देखना होगा कितने क्वेश्चन आते हैं। देखिए फर्स्ट लेवल में 150 क्वेश्चंस एंड 150 मार्क्स, सेकंड का 150 क्वेश्चंस 6 to 8, 150 क्वेश्चंस एंड 150 मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स। दोस्तों ये चीजें हैं जो हमें, अब टिप्स क्या है? टिप्स ये है, इसमें सेक्शन होते हैं जो हमें ध्यान से देखने हैं। और पहला देखिए जो मेन सेक्शन है बाल विकास का है, क्योंकि दोस्तों प्राइमरी एजुकेशन है वो बच्चों के भविष्य का निर्माण करने के लिए जरूरी होती है। इस बात को हल करने के लिए छात्रों को बच्चों के विकास से जुड़े हर बिंदु पर ध्यान देना चाहिए। बाल विकास के प्रिंसिपल से लेकर उनके संपूर्ण सर्वांगीण विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट, सारे प्रमुख कॉन्सेप्ट आपको टिप्स पर याद होना चाहिए, आपके रटे होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में कहे कि इस भाग में कॉन्सेप्ट, विचार, सिद्धांत से जुड़े सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। आप सभी बच्चों को लेकर एक साथ कैसे चल सकते हैं, जो कमजोर बच्चा है उसके लिए कैसे पढ़ाई करवाएंगे, जो होशियार है उसके साथ कैसे पेश आएंगे, ये सारा आपको आना चाहिए। शिक्षा शास्त्र, इस प्रकार के प्रश्न क्लासरूम के माहौल को मद्देनजर में रखकर बनाए जाते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आपको क्लासरूम की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना होगा। बच्चा कैसे से सोचता है और कैसे सीखता है ये भी आपके दिमाग में होनी चाहिए। दोस्तों ये कोई ज्यादा बड़ी चीजें नहीं है, लेकिन हमें फोकस करना होगा कि हम फोकस कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा अधिगम, शिक्षण अधिगम क्या होता है? शिक्षण अधिगम ये चीज है कि हम बच्चों को जान सकें कि हम उन्हें पढ़ाई कैसे करवाएंगे। लेकिन दोस्तों यदि हम घर पे तैयारी करना चाहते हैं तो क्या करें? तो उसके लिए हमें करना ये होगा कि हमें एक तो टाइम टेबल बनाना होगा कि हम बिना टाइम टेबल के कैसे करें तैयारी। तो दोस्तों आपका जो कोर्स है उसे हम अलग अलग पैटर्न में, अलग अलग भाग में बांट लेंगे और जो हमारी वीकनेस है उसको हम ज्यादा टाइम देंगे। इसके अलावा जो हमें बात करनी है वो है कि हम किस स्तर पर जाकर तैयारी करेंगे। तो दोस्तों हमें हमारा स्तर देखना होगा, क्योंकि हमें पुराने पेपर देखने होंगे। पुराने पेपर हमने देखे, लेकिन दोस्तों इसके अलावा एक चीज और बता दूं, आपको अवेयर रहना है, आपको न्यूज़पेपर पढ़ते रहना है और आपका हेल्थ इज वेल्थ है। आपको अपने हेल्थ का भी कॉन्शियस रहना है, प्लस आपको क्या करना है, और आपको जो टेंशन है बिल्कुल नहीं लेनी, आपको नींद पूरी लेनी है। 8 घंटे नींद तो होनी चाहिए। आप सुबह जल्दी उठकर पढ़िए, 5 से 7 2 घंटे, आपको ऐसा याद होगा कि आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। दोस्तों ये सारी चीजें हैं और कोई भी चीज कठिन नहीं है। दोस्तों मैं ये बता दूं, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, क्योंकि पॉसिबल, इम्पॉसिबल खुद कहता है आई एम पॉसिबल। तो दोस्तों आपको तैयारी करने के लिए पैमाना है आपके पास, आपका रणनीति है, तैयारी करें। कैसे करें? मन लगाकर करें। ऐसा सोचें कि मेरी जिंदगी का यह एक लास्ट पड़ाव है, जिसे यदि मैंने पार कर लिया तो मेरी जो लाइफ है वो गोल्डन हो जाएगी, गोल्डन हो जाएगी, कहते हैं ना, चमकीली हो जाएगी एकदम। और नहीं तो दोस्तों होता क्या है, नहीं तो हम हंसी के पात्र भी हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों आज हम जाते जाते कुछ क्वेश्चन है उनके आंसर जानना चाहिए जो आपके मन में भी होंगे। और ये पहली बार परम क्लासेस चैनल आपसे संक्षिप्त में बात करने जा रहा है। तो दोस्तों पहला सवाल तो ये है कि सीटेट एग्जाम है क्या, क्या चीज है, क्या बला है जिसकी हम बात कर रहे हैं आज? वह सीटेट केंद्र सरकार के निर्देश पर सीबीएसई की ओर से आयोजित कराई जाने वाली वह परीक्षा है जो शिक्षक भर्ती से पहले एक आवश्यक शिक्षक पात्रता परीक्षा है, जो पहले नहीं होती थी। पहले बीएड से काम चल जाता था। आरटी अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 1 के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई ने 23 अगस्त 2020 और 29 जुलाई 2011 की अधिसूचना के माध्यम से कक्षा 1 से 8 तक के लिए शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम योग्यता सीटेट निर्धारित की थी। अब बात आती है कि पात्रता और फीस क्या और प्रयास कितने हैं। दोस्तों प्रयास अनलिमिटेड है, कितने भी दे सकते हैं आप, उसमें सुधार करने के लिए अनलिमिटेड है, आपको कोई लिमिटेशंस नहीं है, जैसे कि नेट की नहीं है। सीटेट परीक्षा के लिए पात्रता क्या है? दोस्तों पात्रता ये है, पात्रता की बात कर लेते हैं। दिसंबर सेशन के लिए पात्र होने के लिए एक उम्मीदवार का भारतीय नागरिक होना जरूरी है, आपके भारत के एक सिटीजन होने जरूरी है और कम से कम 18 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए। कितनी? 18 ईयर्स, याद रखिएगा। और जिस सब्जेक्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसमें सीनियर सेकेंडरी या ग्रेजुएट में कम से कम
50% मार्क्स तो होने चाहिए। इसके अलावा यदि आप ओबीसी है तो आपकी फीस लगेगी 1000 अन्यथा, और दोनों पेपरों के लिए 1200 रुपए। लेकिन यदि आप अनुसूचित जाति जनजाति से हैं तो आपको 500 रुपए देने पड़ेंगे और 2 पेपर के लिए 600। यदि आप सामान्य है, जनरल है, तो आपको पेपर के लिए 1000, एक पेपर के लिए, दोनों के लिए 1200 रुपए। तो दोस्तों दोनों के लिए अप्लाई करना चाहिए, हमें छूट मिल रही है 800 रुपए की छूट, हम क्यों ना दोनों पेपर की दे, और दोनों पेपर एक ही दिन तो है, हमें तैयारी थोड़ी ज्यादा करनी होगी। अब बात आती है सीटेट परीक्षा का क्या उपयोग है, क्यों करवाई जाती है। सीटेट परीक्षा पास करने से एक उम्मीदवार केंद्र सरकार की शिक्षण नौकरियों के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हो जाता है। ऐसे उम्मीदवार केवीएस, एनवीएस आदि जैसे स्कूलों में अप्लाई कर सकते हैं। क्या सीटेट आजीवन मान्य है? कई बच्चों के दिमाग में ये है कि इसकी एक्सपायरी डेट है, जैसे टेबलेट की होती है, जैसे प्रोडक्ट की होती है, सभी चीजों की एक्सपायरी है। लेकिन क्या इसकी भी एक्सपायरी डेट है? कई भ्रमित है कि हाँ, कईयों ने क्या डाल दिया, कोचिंगों ने दिमाग में उनको तैयारी के नाम पर पैसा लूटने के लिए कि भैया 2 साल के लिए मान्य। नहीं दोस्तों, सुन लीजिए दोस्तों, ये आजीवन मान्य है 2011 से। यदि आपका एक्सपायर भी हो चुका है तो आप उसके रिन्यू करवा सकते हैं, और ये होल लाइफ के लिए मान्य है। ऐसा नहीं है कि 1 या 2 साल के लिए, आप कंफ्यूज ना हो। उसके बाद है क्या सीटेट में नेगेटिव मार्किंग होती है? तो जान लें दोस्तों, एक चीज और बता दूं आपको, यदि कोई कह रहा है कि नेगेटिव मार्किंग है तो एकदम गलत है, उसे पता ही नहीं है कि पैटर्न क्या है। दोस्तों बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप अपना माइंड हो, जो आपकी सोच है, उसको अपलोड करके आप रिप्लाई दे, कोई भी क्वेश्चन छोड़े नहीं बस। और नेगेटिव मार्किंग कहीं भी नहीं है, कतई नहीं है, किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगला है सीबीएसई सीटेट एडमिट कार्ड कब जारी होगा? दोस्तों मैं बता दूं आपको, यह आपके 12 दिसंबर को, जो दिसंबर का एग्जाम है उसके लिए 12 दिसंबर को जारी हो जाएगा। साल में 2 बार आयोजित किया जाता है। हाँ, किया जाता है साल में 2 बार। दोस्तों ये 2 बार होता है, एक तो अगस्त और एक होता है दिसंबर के अंदर, 2 बार हो गया। इसके बाद सीटेट और टेट में क्या अंतर है? दोस्तों सीटेट जो है उसका उपयोग केंद्र स्तर की परीक्षा के लिए किया जाता है, और टेट का क्या किया जाता है? राज्य स्तर पर किया जाता है। तो दोनों में फर्क यही है, एग्जाम लगभग सेम है। सीटेट सेंट्रल लेवल और टेट है वो आपका स्टेट लेवल, ठीक है। अब बात आती है आपके सीटेट पास करने के बाद क्या करेंगे। हमने पढ़ाई कर ली, हमने सक्सेसफुल मार्क्स भी ले आए, तो करेंगे क्या? एक बार परीक्षा पास करने के बाद आप केंद्रीय विद्यालय में आवेदन के लिए पात्र हो जाते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी चीज तो ये है दोस्तों, सीटेट पास करने के बाद कहां आवेदन कर सकता हूं, आपके दिमाग में आया होगा। तो दोस्तों वो है केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस, नवोदय विद्यालय एनवीएस एंड केंद्रीय तिब्बती विद्यालय, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के, केंद्र शासित प्रदेश हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट के होगा, उन सब में आप अप्लाई कर सकते हैं। क्या आपने, एक चीज बताइएगा कमेंट में, क्या आपने कभी इन 11 क्वेश्चनों के आंसर एक जगह अपनी भाषा में जाने हैं? क्या आपने जो टिप्स हैं जो हमने आज आपके साथ शेयर किए, तैयारी किए, क्या आपने पूरे पैटर्न के साथ ये टिप्स हैं वो कभी जाने हैं क्या? बड़े बड़े धुरंधर कहते हैं कि हम आपको टिप्स बता रहे हैं, लेकिन दोस्तों वो टिप्स वही बताएंगे जो आपको कोचिंग में पढ़ाई करने से ही मिलेंगे। लेकिन परम क्लासेज ये कहता है कि आप घर पर बैठकर इन टिप्स को फॉलो कर 90% मिनिमम ला सकते हैं, ये हमारा दावा है दोस्तों। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट हमसे सलाह लेकर परम क्लासेज के इस चैनल से बहुत बच्चे सीटेट में 90 अबोव ला चुके हैं, आप क्यों नहीं ला सकते? दोस्तों करना क्या है, 6 to 8 की जो आपकी सीबीएसई बोर्ड की बुक्स है उनको खाली रिवाइज करना है, उससे आपका नॉलेज ही बढ़ेगा। दोस्तों एक बार रिवाइज करके तो देखिए, यदि आपकी कोचिंगों की जो मन में भ्रांति है वो दूर नहीं हो जाए तो कह देना। तो दोस्तों आज हमने आपके साथ शेयर की सारी बातें हिंदी और इंग्लिश में की। सीटेट क्या है, सीटेट का पैटर्न क्या है, सीटेट कहाँ आयोजित की जाएगी, कौन सी 136 सिटीज है, सबके आपको नाम तक आपके साथ शेयर किए हैं। इसके बाद आपको करना क्या है, आपको कितना समझ में आया आज के वीडियो में बताया गया वो, उसको आप कमेंट में दें, उससे हमारा एंकरेजमेंट बढ़ेगा, हमारा उत्साह बढ़ेगा कि हम आपके लिए सीटेट से संबंधित और भी चीजें लेकर आए। क्योंकि आज हमने आपको डेट्स भी बता दी है, और वापस जाते जाते एक बार ब्रेकिंग न्यूज पुनः बता देता हूं, और ब्रेकिंग न्यूज है कि एग्जाम की डेट रिवाइज हो चुकी है, और उस रिवाइज डेट का जो नोटिफिकेशन है फ्रॉम द सीबीएसई बोर्ड, हम है वो उसे आपके वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आज आप देख सकते हैं
वो नोटिफिकेशन भी उनके लेटर हेड पे दिया गया है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है उसके। तो दोस्तों आप उनको देखिए, उसमें पूरा डेट 14 दिसंबर सैटरडे है। दोस्तों सैटरडे को एग्जाम दीजिए, संडे है, मस्ती कीजिए, क्या जरूरत है, मस्ती भी तो चाहिए, अच्छा पेपर मस्ती, अरे नहीं भी हो तो क्या है, कौन सी दुनिया खत्म हो गई, मस्ती कीजिए, क्योंकि हमारे दिमाग में टेंशन नहीं होना चाहिए। टेंशन लेने का मतलब है कि हम गर्त में चले जाएंगे जिंदगी। तो दोस्तों देखते रहिएगा परम क्लासेस चैनल को, जानते रहिएगा टेट सीटेट के बारे में। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक लेकर जो आपकी काम का, आपके भविष्य के लिए काम का है। धन्यवाद।